ہم کو نہیں ہے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد کرو، جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر فضل کیا ہے، تو نے ہماری حفاظت کی ہے، تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اور تیرے فضل کے وسیلے سے آج تیرے مقدس دن میں ہم پھر سے اکٹھے ہو سکیں۔ خداوند اگرچہ ہم تیرے گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تو زندہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور یہی خداوند ہمارے ایمان کی خاصیت ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور تیرے بیٹے یسوع نے کہا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہو، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خداوند ہم اس بات پر، تیرے بیٹے یسوع کے دعوے پر یقین کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ خداوند آج جہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ آن لائن جمع ہیں، ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، ان سب پر تیری برکت مانگتا ہوں۔ خداوند ہر جگہ جہاں پر تیرے ایماندار لوگ جمع ہیں، وہاں پر تیرے پاک روح کا مسا اور معموری مانگتا ہوں۔ اپنی آگ سے اپنے لوگوں کو دھو، اور جس جگہ بھی تیرے لوگ موجود ہیں، تیری حضوری کے وسیلے سے تیرے لوگ برکت پائیں، تیرا تخت لگ جائے، اور تیری موجودگی کے وسیلے سے تیرے لوگ پاک ٹھہریں، اور خداوند ہم میں سے ہر ایک تیرے پاک روح کے وسیلے سے عبادت کے لیے تیار ہو سکے۔ دنوی سوچیں اور فکریں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے دور ہو جائیں۔ تیرے پاک روح کی معموری کے وسیلے سے ہمارے خیالات اور دھیان تیری طرف لگ جائیں۔ ہم ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی آنکھوں کے ساتھ تیری صلیب کو اپنے سامنے دیکھ سکیں اور اس سے برکت پا سکیں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارا تیری تعریف کرنا، تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیرے گیت گانا، تیرے کلام کو سننا اور تجھ سے مانگنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Hey
کرے۔ یہ ایمان کا اقرار ہمارے مسیحی عقائد کا مجموعہ ہے اور اس کا اقرار ہم اپنی زبان سے کرتے ہوئے اپنے مسیحی ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ آئے ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، بمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 48 گائیں گے۔ زبور نمبر 48، زبور نمبر 48۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے دینا۔ Thank you.
اور ہم دعا کریں گے کہ خداوند اپنا فضل اس دنیا پر کرے اور ہم پھر سے خدا کے گھر میں اکٹھے ہو کر عبادت کر سکیں۔ ہم دعا کریں گے کہ خداوند تمام مسیحی اداروں کو اور ایف سی کالج کو برکت دے، ایف سی کالج کو چلانے والے تمام انتظامی افسران، ڈائریکٹر اور ان کے تمام مددگار اور اس طرح سے فیکلٹی اور جتنا اسٹاف یہاں پر کام کرتا ہے، خداوند نے برکت دے، ان کی حفاظت کرے، مشکل حالات میں اس ادارے کو چلانے کے لیے خداوند وسائل مہیا کرے اور حکمت بھی دے تاکہ ان مشکل حالات میں یہ ادارہ قائم رہے، مضبوط رہے اور ترقی کر سکے۔ پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے امن اور سلامتی کی بھی دعا کریں گے۔ دعا کریں گے خداوند اپنے فضل سے دنیا پر رحم کرے اور دنیا کو سلامتی بخشے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں وقاص یاسر ہماری رہنمائی کریں گے۔ آئے پاپا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کا دن تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم تیرے سامنے حاضر ہو سکے اور تیرے نام کو ستائش اور دن دینے کا باعث بن سکے۔ تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے باپ ہمیں تندرستی، صحت عطا فرمائی ہے اور زندگی کی وہ تمام سہولتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ چونکہ باپ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن یہ تیرا فضل اور رحم ہے کہ تو ہمیں یہ تمام برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں باپ اپنے خاندان میں محفوظ رکھا ہے۔ چونکہ آج سبت کا دن ہے، ہم روایتی طور پہ اپنی عبادات چرچ میں ادا کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اس وائرس کی وجہ سے اپنی عبادات کو چرچز میں ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمان اور باپ ہمارا یقین ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کے باپ آن لائن عبادت میں شامل ہو کر باپ ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ باپ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ باپ یہ وائرس کو کچھ پوری دنیا میں سے، ملک پاکستان میں سے ختم کر۔ میرا ایمان ہے کہ باپ تیرا لہو یہ قدرت رکھتا ہے کہ یہ وائرس اس دنیا سے ختم ہو جائے اور ملک پاکستان سے ختم ہو جائے۔ باپ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایف سی کالج کو تو باپ بہت سی برکتیں عطا فرما۔ اس کی تمام ایڈمنسٹریشن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ باپ تم کو عقل اور دلائی دے تاکہ وہ اس کالج کو تیرے نام کے لیے باپ اور زیادہ عزت اور جلال دینے کا باعث بن سکے۔ ان تمام مسیحی لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ باپ جو کہ دکھ تکلیف میں مبتلا ہے، قید خانہ میں مبتلا ہے، باپ تو ان کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو جانتا ہے۔ ہماری آنکھ اس سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن تیری آنکھ ان تمام تکلیفوں سے جو تیرے مسیحی لوگ باپ برداشت کر رہے ہیں ان سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ تو باپ ان لوگوں کو صبر، اطمینان اور تسلی بخش اور اپنے ایمان میں مضبوط کر تاکہ وہ تیرے نام میں اور زیادہ مضبوط ہو کر تیرے نام کو زیادہ جلال دینے کا باعث بن سکے۔ اب تو اس سے دعا کرتے ہیں چونکہ ہم گھروں میں موجود ہیں اور یہ وقت ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم باپ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں گھروں میں رہ سکیں، لیکن تو ہمیں تقویت اور طاقت بخش تاکہ ہم اس مشکل وقت میں یہ تمام تکلیف کو آسانی سے باپ گزار سکیں۔ باپ ایف سی کالج شیئرس کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے پاسٹر عمر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی تمام کوشش اور کاوش کے لیے کہ باپ تو ان کو جو عطا فرماتا ہے آن لائن عبادت کے حوالے سے کہ باپ ان کا یہ تمام انیشیٹو باپ تیرے لیے اور زیادہ عزت اور جلال دینے کا باعث بنے اور تو ان کی زندگیوں میں اور زیادہ ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ ہم تمام لوگ جو باپ اس آن لائن عبادت میں شریک ہوئے ہیں، باپ ہماری دعا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس آن لائن عبادت میں شامل ہیں ہمارے ساتھ اس کے تھرو اور زیادہ عزت اور برکت اور ترقی پائیں۔ تیرا شکر۔ تو باپ ہمیں محفوظ رکھ اور تمام عباس میں ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھ۔ تو باپ میری دعا کو سن اور قبول کر، اس کے سب نام لے کر مانگتے ہیں۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 84 گائیں گے، زبور نمبر 84، زبور 84، خداوند تو لشکرانہ خدا ہے۔ خدا
شفا صادر ہوتی ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ آسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے وہ نجات پائیں، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نام ہے، یسوع نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم اس کے وسیلے سے اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے اور ان حالات میں دنیا کے لیے بھی شفا مانگ سکتے ہیں۔ آئیں ہم سبھی دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ ذکر ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں قدرت ہے، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں فتح ہے، اس کے خون کی قدرت سے ہم شفا پاتے ہیں۔ خداوند اسی ایمان میں ہم تیری حضوری میں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جتنے لوگ آن لائن اپنے گھروں سے شامل ہیں، ہم سبھی خداوند ایک دل ہو کر، ایک روح ہو کر اور اس ایمان میں مضبوط ہو کر کہ تو ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اکٹھے مل کر اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے ہر ایک فرد کے لیے شفا مانگتے ہیں۔ خداوند تو اپنے بیٹے یسوع کے خون کی قدرت سے ہم میں سے ہر ایک کو چھو، تاکہ تیرے چھونے کی قدرت سے ہم میں سے ہر ایک جسم شفا پا جائے۔ خداوند ہماری ہر ایک جسمانی کمزوری، درد، تکلیف جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہے، یسوع کے نام سے وہ ختم ہو جائے۔ خداوند ہم تیرا معجزہ مانگتے ہیں، تو معجزات کا خدا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو۔ خداوند جہاں بھی اس وقت تیرے لوگ ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، وہیں پر ان کے جسم پر تیری آگ کی قدرت نازل ہو۔ تیری آگ جو دھوتی ہے، ساری تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے اور پاک ٹھہراتی ہے، یسوع کے نام سے ہم میں سے ہر ایک کے جسم کو دھوئے اور پاک کر دے، اور ہماری ہر ایک بیماری یسوع کے نام سے ختم ہو جائے۔ خداوند تو ہماری زندگی میں معجزہ کر۔ خداوند ہماری کلیسیا میں جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہر ایک کو چھو، چاہے وہ کسی بلڈ پریشر کی تکلیف میں مبتلا ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، جسمانی درد ہے، شوگر کی تکلیف ہے، یسوع کے نام سے ہر ایک تکلیف ختم ہو جائے۔ اور خاص طور پر خداوند ہم تیری حضوری میں یونس صاحب کی ساری فیملی کو، یونس صاحب کو، خرم کو، اسی طرح سے بھائی راج کو، اور اسی طرح سے خداوند بیٹی عالیہ کو، اور بھی جتنے کلیسیا میں بیمار ہیں، بھائی شہزاد ڈیوڈ کو بھی، بھائی ایمانویل کو، بھائی نعیم تبسم کو، مسز نذیر زیائی کو، کمال ولسن صاحب کو، مسز الشبہ کمال کو، اور بھی جتنے ہماری کلیسیا میں بیمار ہیں، ہم سب کو تیری حضوری میں یاد کرتے ہیں۔ بھائی راج کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے سبھی شفا پائیں، سبھی کی زندگی میں معجزہ ہو، اور تیرے خون کی قدرت سے سبھی دھل جائیں، تاکہ ہر ایک بیماری یسوع کے نام سے سبھی کے جسم سے دور ہو جائے، سبھی شفا پائیں، معجزات کو دیکھیں۔ اور خداوند کرونا وائرس کی وجہ سے جو بیماری اس دنیا میں پھیل چکی، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے شفا مانگتے ہیں۔ خداوند تو مخلصی دینے والا خدا ہے، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مخلصی، رہائی اور نجات ہے۔ خداوند تو پوری دنیا کو مخلصی دے، تو رحم کر، خداوند تو معاف کر، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے پوری دنیا خداوند رہائی پائے، مخلصی پائے، بحالی پائے۔ خداوند تو جانتا ہے کہ اس وائرس کے سبب سے، اس بیماری کے سبب سے پوری دنیا اس وقت تباہی کی
शिकार है, तकलीफ और दुख, मायूसी, खौफ का शिकार है। खुदावंद तू पूरी दुनिया पर रहम कर, तेरी कुदरत ज़ाहिर, तू खुदावंद माफ करने वाला खुदा है। तू हमें से हर एक को माफ कर, पूरी दुनिया को माफ कर, ताकि खुदावंद ये दुनिया बहाल हो सके। तेरी कुदरत को मांगते हैं खुदावंद, तू रहम कर, हमें महफूज कर ले। खुदावंद पूरी कलीसिया को तेरे खून की कुदरत में धो दे, ताकि खुदावंद हम धुल जाएं, हम पाक हो जाएं, हमारे जिस्म से तकलीफें दूर हो जाएं। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं यीशु के नाम से, वो भी शिफा पाएं। खुदावंद उनको तेरी कुदरत के वसीले से औलाद की नेमत मिले, उसी यीशु के नाम से, आमीन। अजीज़ो, इन मुश्किल हालात में यकीनन आप जब खुदा के घर से दूर हैं तो खुदा के घर में आने की कभी कभी महसूस करते हैं, और इसके साथ साथ उदासी भी महसूस करते हैं। हम भी इसी तरह आपकी कमी को महसूस करते हैं, लेकिन हमारा ये ईमान है कि खुदावंद फजल करने वाला खुदा है, रहम करता है। दुआओं में खुदावंद से पूरी दुनिया के लिए रहम मांगें, पूरी दुनिया के लिए खुदा का फजल मांगें, ताकि खुदा रहम करे, खुदावंद हमें महफूज रखे और खुदावंद दोबारा से बहाल करे, ताकि हम फिर से इकट्ठे हो सकें। और मेरा ईमान है कि हम जल्द इकट्ठे होंगे, और अपने आप को ज़रूर महफूज रखें, क्योंकि हमारा मसीही ईमान ये है कि हमारा खुदावंद जिंदा है, हमारे साथ है। लेकिन खुदावंद ने हमें हिकमत और फहम बख्शी है। खुदावंद नहीं चाहता कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद परेशानी और फिक्र में डालें, नुकसान में डालें। खुदावंद ने हमें हिकमत इसीलिए दी है कि हम अपने जिस्म को महफूज रखें। खुदा का कलाम ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हमारा जिस्म खुदा का मक़दस है, और इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी हिफाजत करना, इसको नुकसान से बचाना, इसको बीमारियों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसको तकलीफ में से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये खुदा ने हमें हिकमत दानाई दी है, हमारी रहनुमाई खुदा करता है। इसलिए ज़रूर हिकमत और दानाई को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को महफूज रखें, और खुदावंद से दुआ करते रहें कि खुदावंद रहम करे और खुदावंद इस वबा को ख़त्म करे। उसकी कुदरत ये कर सकती है। जब इंसानी हिकमत और दानाई नाकाम हो जाए तो खुदा की हिकमत और कुदरत जो है वो ज़ाहिर होती है और काम करती है। इसलिए ज़रूर खुदावंद से दुआ करते रहें, और जब आप घर में हैं तो अपनी दुआ की आदत को, इबादत को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। ये मौका हमें रूहानी तौर पर रिफ़्रेश होने का हमें वक्त फराहम कर रहा है। हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है। बाज़ औक़ात मुश्किल वक्त हमें सिखाने का बायस बनता है, और ये मुश्किल वक्त हमें सिखाने का बायस बन रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करके अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत बना सकते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ख़ानदानी दुआ को अपनी रूटीन बनाएं, ख़ानदानी तौर पर अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ करते रहें इस मुश्किल वक्त में भी, और खुदावंद करे कि हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं, फिर उसके बाद दोबारा से वापस उस दुनिया की तरफ, दुनिया के कामों की तरफ और मसरूफियत की तरफ मुड़ने के बजाय जो आजकल के हालात में हम दुआ में मसरूफ़ हैं, इस रूटीन को हमेशा के लिए अपने साथ रख लें, और खुदावंद से दुआ करेंगे कि वो हमारी मदद करे कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, ये हालात हमारी ज़िंदगी को बदलने का बायस बन जाए। ज़रूर खुदावंद में रूहानी तौर पर मजबूत हों। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान दें। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24वां बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 verses 36 to 49। खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती
जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी को उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा। लेकिन जब तक आर्मे वाला पर तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर से बरकत हो। आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूप में गीत नंबर 354 गाएंगे। 354 गीत नंबर 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। शिफा आती है।
कुदरत वाला खुदा है। हम तेरे बेटे यीशु की बातों पर यकीन रखते हैं कि वो सच्ची हैं, उसके वादे सच्चे हैं। उसने वादा किया कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, यानी रूहे हक। और खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तेरे बेटे यीशु के वादे के मुताबिक तूने हमें रूह कुदस बख्शा, ताकि रूह कुदस हमारी मदद कर सके और हम तेरे कलाम को समझ सके। दुआ करते हैं खुदावंद कि इस वक्त भी तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, तो अपने पाक रूह की मामूली बख्श दे, तेरे पाक रूह का मसा हमें मिले, ताकि तेरे कलाम से हम बरकत पाएं और मजबूत हो जाएं। तो मेरी रहनुमाई कर ताकि खुदावंद तेरा पाक रूह बोले और सभी सुनने वाले बरकत पाएं। खुदावंद मैं अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि तेरा पाक रूह मदद करे, तेरा पाक रूह लोगों से बात करे, ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जैसे मैंने गुज़श्ता अतवार में अर्ज़ किया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने और आसमान पर चले जाने के दरमियानी अरसे के दरमियान यीशु ने जो अपने शागिर्दों पर और मुख्तलिफ लोगों पर अपने आप को ज़ाहिर किया, हम उसके बारे में सीखेंगे। गुज़श्ता अतवार हमने खुदावंद यीशु मसीह का अपने दो ईमानदार शागिर्दों पर ज़ाहिर होना और उनके साथ सफ़र करने के बारे में सीखा। इस अतवार हम यीशु का तीसरी दफ़ा अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होना सीखेंगे। और ख़ास तौर पर जब पिछली दफ़ा हमने इमाऊस की राह पर यीशु का दो शागिर्दों पर ज़ाहिर होना सीखा था, तो उसके टॉपिक को हमने यूँ लिया था कि जीसस विद डिस्ट्रेस्ड डिसाइपल्स, यानी यीशु मायूस शागिर्दों के साथ। और आज का जो हमारा तिलावत के लिए चुना गया हवाला है, ये यीशु का तीसरा लोगों पर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होने का वाक़या है। और इसमें खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों का पर ज़ाहिर होना हम इस लिहाज से देखते हैं। 36वीं आयत की जो 36वीं आयत का पहला हिस्सा है, उसमें ही हम अनुमान को चुनेंगे। लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ। और इससे पहले अगर हम गुज़श्ता अतवार जो हवाला की तिलावत सुनी थी, उसमें लिखा था कि वो शागिर्द जिनके दरमियान यीशु रहा, जिनके साथ यीशु ने बातें की, जिनके साथ यीशु ने सफ़र किया, जिनके साथ यीशु ने खाना खाया, वो उसी वक्त वापस मुड़े और यरूशलेम में आए और उन्होंने शागिर्दों को इकट्ठा पाया और उन्हें बताया कि उन्होंने यीशु को देखा है। उन्होंने वो तमाम बातें जो यीशु ने उनके साथ की थी, जिस तरह से यीशु ने उन पर ज़ाहिर होकर खुदा के कलाम को समझाया था और जिस तरह से वो मामूर हुए थे, पुरजोश हुए थे यीशु की बातों से, वो सारी गवाही उन्होंने अपने साथी शागिर्दों के साथ बांटी। और ये वाकया जो तीसरी दफ़ा यीशु का ज़ाहिर होना है, ये उसी दिन का है, उसी शाम को, यानी यीशु के जिंदा होने के दिन ही, यानी ये ईस्टर के दिन के ही वाकयात में अभी हम सीख रहे हैं। और यीशु का दो शागिर्दों पर ज़ाहिर होने के बाद जब वो दो शागिर्द दूसरे शागिर्दों के पास वापस यरूशलेम आ गए, तो वहां पर यीशु दोबारा से उनके दरमियान ज़ाहिर होता है। लिखा है कि आकर उनके बीच में खड़ा हुआ। इसी तरह अगर हम यूहन्ना की इंजील में इसी हवाले को देखें, तो यूहन्ना की इंजील भी इसको बयान करती है। यूहन्ना की इंजील और उसके 20वें बाब में इसी हवाले का जिक्र है। यूहन्ना की इंजील और 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ। ये दोनों हवाले इसी वाक़े को बयान करते हैं। यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक और मुकद्दस लूका की इंजील का 24वां बाब उसकी 36वीं आयत से लेकर 49वीं आयत तक, ये एक ही वाक़े को बयान करते हैं। और ये तीसरी दफ़ा यीशु का ज़ाहिर होना है। और दोनों आयात में, दोनों हवालों में एक बात मुश्तरक, यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हुआ। शागिर्दों की हालत उस वक्त क्या थी? शागिर्द खौफ से अपने आप को बंद करके, दरवाजों को बंद करके घर में बैठे हुए थे। आजकल की सूरत हाल की तरह गई है।
शागिर्द अपने आप को खौफ में मुब्तला थे और बंद कर महफूज समझ रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि यीशु को जिस तरह से मसलूब किया गया है और अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि यीशु को उसके शागिर्द उठाकर ले गए हैं या यीशु जिंदा हो गया है, तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब हमारी भारी है, क्योंकि अगर यीशु जिंदा हो गया तो अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे, या अगर यीशु की लाश कहीं आगे पीछे हो गई है तो फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी मौत के खौफ से अपने आप को बंद कर बैठे हुए थे, और यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हो गया। आज का जो हमारा अनुमान है वो यही है, जीसस अमंग द फियरफुल डिसाइपल्स, यीशु का खौफजदा शागिर्दों के दरमियान आना। गुज़श्ता अतवार हमारा अनुमान था यीशु का मायूस शागिर्दों के साथ हो जाना, मिल जाना उनके साथ, जब वो सफर कर रहे थे उनके साथ आकर मिल जाना। और आज यीशु का अपने खौफजदा शागिर्दों के दरमियान आ जाना, जब दरवाजे बंद थे, खौफ से उन्होंने बंद किया हुआ अपने आप को छुपा रखा था, इकट्ठे थे, परेशान थे, मायूस भी थे और डर रहे थे कि यीशु की लाश पता नहीं कहां गई है, वो जिंदा हुआ या नहीं, डाउटफुल भी थे। यीशु उनके बीच में आ खड़ा, अमंगस्ट देम, यानी उनके दरमियान आ गया, उनके बीच में आ गया जब वो खौफजदा थे। बिल्कुल आज के हालात के मुताबिक हम भी लॉकडाउन है, घरों में बंद हैं, लेकिन एक ईमान जो यीशु के लिए हमारा है कि यीशु अपने लोगों के बीच में आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी सलामती हो, पीस बी अनटू यू, तुम्हारी सलामती हो। वो लोग जो सलामती के लिए अपने आप को छुपाए हुए थे, अपने आप को महफूज करना चाह रहे थे लेकिन महफूज नहीं थे, क्या उनका बंद दरवाजा उन्हें यहूदियों से बचा सकता था? यहूदी यीशु को जब गिरफ्तार करने के लिए आए तो वो एक फौज के साथ, सिपाहियों के साथ, हथियारों के साथ यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए, और शागिर्द जब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया तो भाग चुके थे। क्या उनका बंद दरवाजा उन्हें बचा सकता था? हम भी आज अपने आप को महफूज समझते हैं, लेकिन क्या हम महफूज हैं? यीशु ने अमाल की किताब के पहले बाब में हम सीखते हैं कि यीशु क्यों अपने लोगों पर, अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। अमाल की किताब का पहला बाब हमें रीजन देता है कि वो उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा, उन्हें सिखाता रहा। और हमने इमाउस की राह पर जो दो शागिर्दों के साथ यीशु की बातें देखी, जब उनके साथ आ मिला, और फिर यहाँ पर यीशु का शागिर्दों पर जाहिर होना और उनके साथ बातें करना, उनको कलाम में से समझाना, मूसा की तौरात में से समझाना, नबियों के सहीफों में से समझाना, उसकी मसलूबियत और उसके जिंदा होने का सबब बयान करना कि क्यों ये जरूरी था, ये सारी बातें यीशु उनके साथ करता रहा ताकि शागिर्द दोबारा से बहाल हो जाएं, दोबारा से मजबूत हो जाएं। वो मायूसी जो उन्हें खौफजदा करके उनको छुपा रही थी, उनको छुपने के लिए मजबूर कर रही थी, यीशु का उनके बीच में आ जाना, उनसे बातें करना, अपने शागिर्दों पर बार बार जाहिर होने का मकसद ये था कि वो उनको मजबूत करे और उनको सलामती बख्शे। आज भी हमें इस ईमान में मजबूत होने की जरूरत है कि जीसस इज अमंगस्ट अस, जीसस हमारे दरमियान, यीशु हमारे दरमियान है, वो हमारे साथ है। इस लॉकडाउन में, इस खौफ में यीशु हमारे बीच में है, और यही यीशु का फजल और रहम है कि अपने लोगों के दरमियान। हम ईमान में कमजोर हो सकते हैं, शागिर्द भी ईमान में कमजोर थे। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील एक ऐसे ही वाक़े को ज़ाहिर करती है। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में, मुक़द्दस मत्ती की इंजील में भी वाक़े का जिक्र है, मुक़द्दस लूका की इंजील में भी इस वाक़े का जिक्र है, जब यीशु तूफान को थमा देता है। वाक़े कुछ यूँ है कि जब शाम हुई, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के चौथे बाब की 35वीं आयत को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील चौथा बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें, यानी झील के पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद,
क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो जा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? यहाँ पर उनका सवाल ये था, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते? और फिर उसके बाद यीशु ने उठकर हवा को डांटा, पानी से कहा, साकित हो, थम जा, बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? उसने उनके ईमान को भी चैलेंज किया, लेकिन उससे पहले अमन हो गया, पीस हो गया। अमन के लिए जो लफ्ज़ है पीस का, सलामती के लिए भी वही लफ्ज़ है, पीस बी अनटू यू, वही लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो गया और वही लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, अमन हो गया। एक ही लफ्ज़ दोनों जगह इस्तेमाल होता है, जो यीशु के वसीले से हुआ, यीशु के वसीले से मुमकिन होता है। यीशु के वसीले से ज़िंदगियों में इत्मीनान, सुकून और अमन आ जाता है, सलामती आ जाती है। यीशु के हमारे दरमियान होने के वसीले से आती है। लेकिन शागिर्दों की तरह हम भी बाज़ औक़ात ईमान में कमज़ोर होते हैं, खौफ हावी हो जाता है। खौफ इस हद तक हमें अपने अंदर गिरफ्तार कर लेता है, हमारे ऊपर गालिब आ जाता है कि हम भी शागिर्दों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या खुदा को हमारी फिक्र है। इसी तरह की फिक्र शायद शागिर्द उस वक्त भी लेकर अपने आप को छुपा कर रख रहे थे कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, शायद यीशु ने हमें छोड़ दिया है और अब हम हलाक हो जाएंगे, और अपने आप को महफूज करना चाह रहे थे, छुपा रहे थे। लेकिन इंसानी कोशिशें कभी भी इस हद तक कारगर नहीं हो सकती कि हम खुदा की मर्जी पर गालिब आ सकें या खुदा की कुव्वत और अख्तियार पर हावी हो सकें। हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकी सलामती जो है वो यीशु के बीच में आ जाने से मुमकिन है। और शागिर्दों की जिंदगी में सलामती यीशु के वसीले से मुमकिन हुई, उनके ईमान की मजबूती यीशु के वसीले से मुमकिन हुई। और यहाँ पर यीशु ने जिस तरह कश्ती में सवार शागिर्दों को यीशु ने चैलेंज दिया कि तुम ईमान में कमज़ोर हो, तुम अब तक ईमान नहीं रखते। इसी तरह यूहन्ना की इंजील में अगर हम इसी वाक़े को देखें, यूहन्ना की इंजील में जब यीशु शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, वहाँ पर भी और इस वाले मुक़द्दस लूका की इंजील में भी यीशु ने कहा कि किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। और इसी तरह मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में लिखा है कि उसने उनको मलामत किया। और मलामत के लिए जो लफ्ज़ है यूनानी ज़बान में वो है ओनेडिज़ो, जिसका मतलब है रिप्रोच, यानी डिसअपॉइंट हो जाना, यानी कि उनको यीशु ने कुछ सजा दे दी। रिप्रोच का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट इन देयर एक्शन, कि यानी किसी के काम से मायूस होना, यानी यीशु मायूस हुआ। लेकिन सजा का नहीं है यहाँ पे कि अगर हम कमज़ोर हो गए तो अगर हम ईमान में कमज़ोर है तो यीशु उसकी सजा में दे देता है। यीशु अपने लोगों की इंसानी कमजोरियों से वाकिफ है। इसीलिए यीशु बार बार अपने शागिर्दों पर जाहिर हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके शागिर्द इंसान हैं और कमजोर हैं, कमजोर हो सकते हैं। इसी तरह आज भी वो जानता है कि हम कमजोर हैं, इंसान हैं, हम कमजोर होकर ईमान में भी कमजोर हो सकते हैं। लेकिन यीशु ये चाहता है कि हम मजबूत रहें। अपने शागिर्दों से भी वो मायूस हुआ कि वो क्यों कमजोर है, क्यों शक में मुब्तला होते हैं। उन्हें मजबूत होने की ज़रूरत है। वो चाहता था कि उसके शागिर्द मजबूत हों, लेकिन जब वो कमज़ोर हो गए तो जगह मलामत किया, उनसे डिसअपॉइंट हुआ, मायूस हुआ। लेकिन फिर भी बार बार वो अपने शागिर्दों के बीच में ज़ाहिर होता रहा ताकि वो मजबूत हो जाए, ताकि उन्हें सलामती मिले। हमें भी इस ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है कि उसका आना, उसका जिंदा होना, उसका अपने लोगों के साथ रहने का, उसके अपने लोगों के बीच में रहने का मकसद ये है कि हम मजबूत और सलामती पाएं। हमारी सलामती यीशु के हमारे बीच में होने के वसीले से, हमारी सलामती सिर्फ हमारी कोशिशों से मुमकिन नहीं, यीशु के बीच में आने के वसीले से ही मुमकिन है। और ख़ास तौर पर यीशु का इस तरह से बंद कमरे में आप मौजूद होना बाज़ औक़ात हमारे लिए कुछ और ख्यालात को भी जन्म देता है। इसके हवाले से बिद्दतें भी सामने आई। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि यीशु जिंदा होने के बाद भी
और जिंदा होने से पहले भी, और खास तौर पर एक बिद्दत गनोस्तियत के नाम से आई 4वीं सदी ईस्वी में, जिन्होंने ये कहा कि क्योंकि यीशु जो है वो रूह है और इसीलिए वो पानी पर चला, और जिंदा होने के बाद वो बंद दरवाजे में से भी गुजर गया, इसलिए उसके पास बदन नहीं था, मैटर नहीं था, मादा नहीं था। वो जब चलता था तो उसके पाँव के निशान नहीं पड़ते थे। बहुत सी इस तरह की बातें भी की गई, लेकिन यीशु के कामिल इंसान होने पर हम यकीन रखते हैं। और यहाँ पर यीशु ने इस शक को उनके दूर किया। उन्होंने समझा कि ये कोई रूह है, उन्होंने भी यही समझा कि शायद ये जिस्म नहीं, ये कोई रूह है। डर गए, खौफजदा हो गए। यीशु ने कहा कि मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। शागिर्दों के ज़हन में भी शक पैदा हुआ कि यीशु रूह है। इसी तरह बाद में बिदअत ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि यीशु जिस्म नहीं रखता था, यीशु कामिल इंसान नहीं था, यीशु सिर्फ कामिल खुदा था। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो इंसान भी कामिल इंसान रहा और कामिल खुदा भी रहा। उसकी ज़िंदगी में उसने जिस्म की सूरत में इंसानों के दरमियान ज़िंदगी गुजारी, दुख उठाया, उसके जिस्म पर ज़ख्म के जो निशान थे वो उसने अपने शागिर्दों को दिखाए कि देखो, ये मेरे पाँव देखो, मेरे हाथ देखो, मैं ही हूँ। उसने अपने ज़ख्म दिखाए, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा कि मुझ में देखते हो। ये यीशु का अपने शागिर्दों पर इस बात की तरह से, इस तरीके से ज़ाहिर होना, इस बात को भी उनके ईमान को मजबूत करता है कि यीशु जब जिंदा हुआ तो जिस्म की हैसियत से जिंदा हुआ, और उसने जलाली बदन जो कि कुदरत रखता था उसमें भी अपने आप को जाहिर किया, और जिस्म की हैसियत में मुकम्मल तौर पर अपने आप को जाहिर किया। लेकिन एक गैर फानी जिस्म की हैसियत में उसने जिंदा होने के बाद अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर किया। और यीशु का अपने आप को उनको पर जाहिर करना और उनको दिखाना, और ख़ास तौर पर यहाँ पर कि मेरे हाथ और पाँव को देखो, मुझे छू कर देखो, ये सिर्फ अपने जिस्म को दिखाना ही नहीं बल्कि एक और बड़े अहम बात की तरफ इशारा कर रहा है। शागिर्दों को यीशु ने जब अपने ज़ख्म दिखाए तो असल में उस ज़ख्म को दिखाने का एक और मकसद भी है। वो मकसद ये है कि शागिर्द जाने कि ये ज़ख्म तुम्हारे लिए है। उसके ज़ख्म, उसके हाथों के निशान हम में से हर एक को मजबूत करते हैं, शागिर्दों को मजबूत करने का बायस बने, उनको यीशु की मोहब्बत दोबारा से उनके दिल में जगाने का बायस बने, उनको एहसास दिलाने का बायस बने कि उसके ये ज़ख्म जो है वो शागिर्दों के लिए, उसके ये ज़ख्म मेरे और आपके लिए हैं, उसके ज़ख्मों के निशान इस दुनिया के लिए हैं, इस दुनिया की रहाई और इस दुनिया की शिफा के लिए हैं, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए हैं। और इसका इजहार यीशु ने बाद में किया भी। इसका इजहार यीशु ने इसी हवाले के आखिर में जाकर किया कि उसने 45 में लेकर उसने उनका जहन खोला कि वो किताब मुक़द्दस को समझें, कि उनसे कहा यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। उसके ज़ख्मों का मकसद, उसके जाहिर होने का मकसद न सिर्फ शागिर्दों को मजबूत करना था, उन्हें आगाह करना था कि यीशु की मसलूबियत और उसका जिंदा होना दुनिया में गुनाहों की माफ़ी और तौबा की मुनादी की बुनियाद बन जाएगा। दुनिया जब तौबा के लिए, दुनिया जब गुनाहों की माफ़ी के लिए किसी माफ़ौकुल फितरत की तरफ देख रही है तो दुनिया को एक बड़ी खुशखबरी यीशु की मसलूबियत और उसके ज़िंदा होने के वसीले से मिलती है। हमें, हमारे घरानों को, मसीही कलीसियाओं को यह खुशखबरी मिली है कि यीशु का जिंदा होना, यीशु का अपने शागिर्दों पर जाहिर होना, उनके बीच में होना हमें बुनियाद फराहम करता है कि गुनाहों की माफ़ी और तौबा का रास्ता खुल गया है। दुनिया को यीशु की ज़रूरत है, दुनिया को तौबा की ज़रूरत है, दुनिया को गुनाहों की माफ़ी की ज़रूरत है, और आजकल पूरी दुनिया में यही कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में इंसान यही सोच रहे हैं तौबा कर लें, तौबा कर लें, गुनाहों की माफ़ी मांग लें, लेकिन किससे मांगें और किसके वसीले से मांगें?
हकीकी बुनियाद क्या है? गुनाहों की माफी और तौबा की बुनियाद कौन फराहम कर सकता है? गुनाहों की माफी और तौबा के लिए कफारा क्या है? किस तरह से हम गुनाहों की माफी मांग सकते हैं? ये दुनिया आज परेशान हैरान है, ताज्जुब कर रही है कि किस तरह से गुनाह माफ हो जाए, किस तरह से खुदा खुश हो जाए। खुदा को खुश करने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए, खुदा की हुजूरी में तौबा के लिए, गुनाहों की माफी के लिए एक ही रास्ता है, और वो यीशु की मसलूबियत और उसका जिंदा होना है, जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाया। जब अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो उसने अपने आप को जाहिर करके उनके बीच में आकर उनके ईमान को मजबूत किया, उनके ईमान को उभारा, स्ट्रेंथन किया, और उन्हें एहसास दिलाया कि उसकी मसलूबियत, उसका जिंदा होना, उसका दुख में से गुजरना जलाल पाने के लिए जरूरी था। यीशु का जिंदा होकर आसमान पर जाना, जलाली बदन को पाना, गैर फानी बदन को पाना, इस कुदरत में खुदा के पास उसके दाहिने हाथ पर बैठ जाना, ये उसकी मसलूबियत के बाद जरूरी था। उसके लिए उसकी मसलूबियत और दुखों में से गुजरना जरूरी था। इसी तरह बाज़ औक़ात दुखों में से गुजरना हमें भी जलाल की तरफ लेकर जाता है। आजकल के हालात हमें तैयार कर रहे हैं, आजकल के हालात हमारे लिए तब्दीली का मौका भी फराहम कर रहे हैं कि हम इस बुनियाद को जान सकें कि यीशु की मसलूबियत और उसका ज़िंदा होना, उसका ज़िंदा होकर हमारे दरमियान रहना हमें बुनियाद फराहम करता है। और इस ख़ास तौर पर इस हवाले में यीशु का के दरमियान आ जाना उनको मजबूत करने का भी बायस बना। और उसके बाद यीशु ने एक जिम्मेदारी भी सौंप दी। 48वें आयत में लिखा है, तुम इन बातों के गवाह हो। यीशु क्यों अपने लोगों पर, अपने शागिर्दों पर बार बार जाहिर होता रहा? ताकि वो इन बातों के गवाह ठहर सके, वो गवाह बन सके। यीशु ने उन्हें मुनादी की जिम्मेदारी सौंप दी। यूहन्ना की अंजील के इसी तरह 20वें बाब में भी हम अगर इसी हवाले को देखें तो उसमें इसमें भी यीशु ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आज ये बड़ी जिम्मेदारी हम पर है। यीशु का जिंदा होना, उसका हमारे बीच में होना ना सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमें जिम्मेदारी सौंपता है कि हम इसकी मुनादी कर सकें, हम इसके गवाह हो सकें। यीशु ने हमें भेजा है। यीशु ने ना सिर्फ शागिर्दों को भेजा, यीशु ने हम में से हर एक को ये जिम्मेदारी सौंपी। शागिर्दों से मैं, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। फिर रूह कुदस की कुव्वत भी यीशु ने यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि उनको बख्शे। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम जिसका मेरे बाप ने वादा किया मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा, लेकिन जब तक आलम वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। ये तमाम वाक़यात, मौका या वक्त जो यीशु ने ईद साउद यानी साउद फरमाने और ईद क़यामत मसीह के दरमियान गुजारा, जिंदा होने और साउद फरमाने आसमान पर चले जाने के दरमियान का अरसा यीशु ने शागिर्दों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। जिसमें शागिर्द खौफज़दा थे, छुपे हुए थे, ये अरसा हमारे लिए भी तैयारी का वक्त है। ये वक्त, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये वक्त हमें मौका फराहम कर रहा है कि हम तैयारी कर सकें। अगर यीशु अपने शागिर्दों के दरमियान अचानक उनके बीच में आ खड़ा हो ताकि उन्हें मजबूत करे, इसका एक और पहलू भी है कि अगर अचानक यीशु आ जाए तो क्या हम तैयार हैं या नहीं? शागिर्द तैयार नहीं थे। शागिर्द उस वक्त खौफज़दा थे, परेशान थे कि क्या बनेगा, मर जाएंगे। आज भी हालात ऐसे ही हैं। अगर यीशु हमारे बीच आ खड़ा हो, अचानक यीशु आ जाए, जिसके लिए हम बड़े परेशान भी हैं, बार बार पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग वीडियोस भेज रहे हैं, लोग वीडियोस पादरी साहबान को फॉरवर्ड कर रहे हैं, मुझे भी बड़ी वीडियोस फॉरवर्ड होती हैं, लोग भेजते हैं कि हमें बताएं क्या है, यीशु कब आने वाला है। हम असल में डरे हुए हैं कि यीशु आ गया तो क्या होगा। लेकिन अगर यीशु आने वाला है या यीशु आ जाए, जिस तरह शागिर्द एक्सपेक्ट नहीं करे, तवक्को नहीं कर रहे थे कि यीशु आ जाएगा उनके बीच में, परेशान खौफज़दा, बंद किए हुए दरवाजे, यीशु अचानक आ जाए, हमारे दरमियान आ जाए, दूसरी आमद हो जाए, तो हम क्या तैयार है?
ये मौका तैयारी का वक्त है। जब हम खौफ में मुब्तला हैं, डरे हुए हैं, इस खौफ को निकाल कर खुदावंद को अपने दरमियान पाने का तजुर्बा करें, खुदावंद को अपने दरमियान देखने का तजुर्बा करें। कि अगर खुदावंद हमारे दरमियान हो, खुदावंद हमारे दरमियान अचानक आ जाए हमेशा के लिए, तो फिर क्या होगा? और अगर खुदावंद हमारे दरमियान है तो हमें मजबूत करे, हमें तैयार करे, ताकि हम आइंदा आने वाले वक्त के लिए तैयार हो सकें, मुनादी के लिए तैयार हो सकें, गवाही के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि हम यीशु के गवाह हैं। हम यीशु की गवाही के लिए इस दुनिया में रखे गए हैं। उसने हमें भेजा है, चुना है, हमें अलग किया है, ताकि हम उसकी गवाही दे सकें, हम मजबूत हो सकें, खौफ को निकाल सकें। और खास तौर पर यीशु ने एक बार अगर यीशु इमाउस में लोगों के साथ शामिल हुआ, उनके साथ रहा, खाना खाया। इसी तरह यहाँ भी अगर मुक़द्दस लूका की इंजील में शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, फिर उनके साथ खाया। फिर इसी तरह दोबारा से यूहन्ना की इंजील में तिब्रियास की झील पर दोबारा से हम उसको सीखेंगे भी। यीशु जब अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, फिर उसने उनके साथ खाना खाया। और अगर हम मुकाशवा की किताब को देखें, मुकाशवा की किताब के 3 बाब की 20वीं आयत में हम सीखते हैं, मुकाशवा की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में लुदीकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ। रफाकत का अंदाज एक जैसा है। जब 2 शागिर्दों के साथ रफाकत रखी, उनके साथ मिल गया और खाना खाया, उनको समझाया, कलाम की बातें की और उनके साथ उनकी ज़िंदगी में जोश लाने और मामूली का बायस बना, उनको मजबूत करने का बायस बना। जब शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, फिर उनके साथ आया, उनके बीच में आ गया, उनके साथ खाना खाया, रफाकत रखी, उनके साथ बातचीत की। यहाँ पर भी मुकाशवा की किताब में लिखा है कि अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। ये रफाकत का अंदाज कैसा है? यानी ये रफाकत गहरी रफाकत की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु को भूख लगती है और यीशु खाना खाने में साथ आता है। ये फेलोशिप, स्ट्रॉन्ग फेलोशिप को जाहिर करती है, मजबूत ताल्लुक को जाहिर करती है कि जब कोई उसे अपनी जिंदगी में अपने साथ पाता है, जिस तरह शागिर्दों ने अपने साथ अपने बीच में पाया, तो यीशु की रफाकत उनके साथ मजबूत हो गई। वो मजबूत हो गए, ईमान में कायम हो गए, कलाम को समझ पाए, भेद खुल गए, खुदा के कलाम के भेद की बातें उन पर असर करने लगी और वो गवाही देने लगे और लोग उनके वसीले से मसीह को जानने लगे। ये गहरी रफाकत की तरफ इशारा है कि जब यीशु साथ आ जाता है, जब यीशु हमारे साथ रफाकत रखता है, जब यीशु हमारे बीच में होता है, हमारा ईमान मजबूत होता है, तो खौफ खत्म हो जाता है, ईमान में दलेरी आ जाती है और फिर हम उसके गवाह बनकर लोगों में से गवाही देने लग जाते हैं। जिंदगी के कामों से, बातों से, मौजज़ात के वसीले से हम अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करते हैं, उनके वसीले से यीशु की गवाही देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज यीशु का अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होना हमें चैलेंज देता है कि जब हम अपने घरों में बंद हैं, बाहर निकलना मुश्किल है, खौफ है, हमें सलामती की ज़रूरत है, यीशु का तजर्बा करें, यीशु को अपने दरमियान पाएं, यीशु को अपने दरमियान महसूस करें, यीशु को अपने दरमियान दावत दें। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। आज भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी यीशु को दावत नहीं दे सके। हालात बड़े खराब हैं, लेकिन फिर भी अभी भी दिल सख्त है। और मुकद्दस मरकस की इंजील में जब यीशु शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ तो लिखा है कि उसने उनकी सख्त दिली पर उन्हें मलामत की। आज भी हम में से बाज़ लोगों के दिल सख्त हैं। हमें यीशु को अपने साथ पाने के तजर्बे की ज़रूरत है कि वो हमारे बीच में, हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिल में हो, ताकि वो हमारे साथ रफ़ाकत रखे, वो हमें मजबूत करे,
وہ ہمیں تیار کرے تاکہ ہم اس کی دوسری آمد کے لیے بغیر کسی خوف کے تیار ہو سکیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یسوع آئے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں خوف ہے کہ یسوع کیوں آ رہا ہے، یسوع ابھی کیوں آ رہا ہے، یسوع کب آ جائے گا۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع نے آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر خوف ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں یسوع کو جگہ دے دیتے ہیں، یسوع ہمارے گھرانوں میں ہمارے بیچ میں ہے، تو یہ خوف ختم ہو سکتا ہے۔ آئیں ہم تیار کریں اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھرانوں کو تیار کریں کہ یسوع ہمارے بیچ میں ہو، ہم مضبوط ہوں، اس کے آنے کے لیے، اس کی دوسری آمد کے لیے بھی تیار ہو سکیں۔ آئیں ہم یسوع کے ساتھ گہری رفاقت کا تجربہ کریں۔ یسوع کے ساتھ ہماری رفاقت اس حد تک ہی بعض اوقات ہوتی ہے، سطحی ہوتی ہے کہ ہم صرف اس کا نام لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یسوع کے ساتھ گہری رفاقت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ جڑا ہوں اور وہ میرے ساتھ جڑے۔ میرا دل یسوع کے لیے دھڑکتا ہے، یسوع کے ساتھ وفادار ہے، میرے دل میں یسوع ہے اور وہ میرے ساتھ رہ کر میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح کی زندگی اور اس طرح کے خداوند کے ساتھ کا تجربہ ہمیں کرنے کی ضرورت۔ آئیں دعا کریں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور تو بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے۔ خداوند تو رحم کر، ہمیں مضبوط کر، جس طرح تیرا بیٹا یسوع شاگردوں کے درمیان میں آ گیا، ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا، موجود ہوا تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں، ان کا خوف ختم ہو جائے۔ خداوند تو ہمارے بیچ میں آ، ہمارے گھرانوں کے بیچ میں آ، ہمارے گھرانوں کے ہر ایک فرد کی زندگی میں آ تاکہ ہماری سخت دلی ختم ہو جائے، ہمارے گھرانے کے ایک ایک فرد کی سخت دلی ختم ہو جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں تیرے بیٹے یسوع کی رفاقت کا تجربہ کرے تاکہ وہ ہمارے ساتھ گہری رفاقت میں رہے۔ خدا تو ہماری مدد کر، ہمیں تیار کر تاکہ ہماری زندگی سے خوف ختم ہو سکے اور ہم تیرے بیٹے یسوع کو اپنے زندگی کے بیچ میں جگہ دیں، اسی یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم گیت نمبر 374 گائیں گے، 374 تو میری خوشی ہے تو میرا مسئلہ۔ Thank you.
खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तो अपने बेटे यीशु में हमारे ईमान को मजबूत करता है कि हमारी ज़िंदगी का इत्मीनान, तसल्ली, खुशी तेरे फजल के वसीले से मुमकिन है। खुदावंद तो हम में से हर एक की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, ज़िंदगी से खौफ को ख़त्म कर दे, और खुदावंद पूरी दुनिया से इस बीमारी को भी ख़त्म कर दे जिसकी वजह से इस दुनिया में खौफ पैदा हो गया। खुदावंद तू रहम कर, खुदावंद तो अपनी कुदरत और अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर कर। खुदावंद मैं अपनी कलीसिया के हर एक फ़र्द को तेरे खून की कुदरत में महफूज करता हूँ। तो हम में से हर एक को छू, जितने हमारे साथ इबादत में शामिल हैं या जितने लोग इस टेक्नोलॉजी के ना होने के सबब से हमारे साथ इबादत में शामिल नहीं हो सके, उन सबको खुदावंद तेरी हिफाजत में देते हैं। हम सब इकट्ठे होकर, एक दिल होकर अपने लिए और सारी कलीसिया के लिए, पूरी मसीही कलीसिया के लिए, पाकिस्तान की पूरी मसीही कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तो हम सब की हिफाजत कर, खुदावंद तो पूरी दुनिया को रहाई बख्श, मखलसी दे, और खुदावंद इस बीमारी से हमें रहाई बख्श दे। खुदावंद ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरे, हम तुझ में महफूज रहें और फिर से दोबारा से हम इकट्ठे हो सके। खुदावंद तू मदद कर, खुदावंद फिर से हमारे लिए बहाली बख्श दे ताकि तेरे लोग तेरे घरों में आएँ और तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिल सके। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हमने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया को ईमानदारों के साथ रहे, आमीन।